So let's start with reproduction in plants, chapter 8. Okay, so to produce its kind is a characteristic of all organisms. इसका मतलब है अपने जैसे सेम ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक है ना। हर एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने जैसे को रिप्रोड्यूस करता है ना। प्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस, ठीक है। The production of new individuals from their parents is known as reproduction. So you can note down this definition of reproduction. But how do plants reproduce? There are different modes of reproduction in plants. We shall learn them in this chapter. Okay, now coming to modes of reproduction. In class 6, we have learned about the different parts of a flower, right? The flowering plant. Now let's try to remember them. Okay, but before that, we'll see that most of the plants have roots, stems, and leaves, right? So these all parts are called vegetative parts of a plant. After a certain period of growth, most plants bear flowers. You may have seen the mango trees flowering in spring. है ना, स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, मैंगो ट्रीज में फ्लावर्स आ जाने लगते हैं, है ना। इट इज दीज फ्लावर्स दैट गिव राइज टू द जूसी मैंगो फ्रूट वी एंजॉय इन द समर। है ना, अभी हम लोग जो मैंगो खा रहे हैं वो स्प्रिंग में उसका फ्लावर निकलता है, फिर समर आते आते उस फ्लावर से वो फ्रूट बन जाता है। वी ईट द फ्रूट्स एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड्स। हम सीड्स नहीं खाते हैं ना, मैंगो के अंदर जो बड़ा सा सीड होता है हम उसको निकाल देते हैं, राइट। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फ्लावर्स? We eat the fruits and discard the seeds. Seeds germinate and form new plants. अब सीड को हम लोग, उसी सीड को हम मिट्टी में डाल देंगे और पानी दे देंगे तो वो भी एक नए प्लांट में उग जाएगा, है ना। Now, so what is the function of flowers in plants? Flowers perform the function of reproduction in plants. Flower are the reproductive parts. अभी हमने पढ़ा था कि स्टेम, रूट और लीव्स है वेजिटेटिव पार्ट्स, है ना, while flowers are reproductive parts. There are several ways by which plants produce their offspring. These are categorized into two types: asexual reproduction and sexual reproduction. In asexual reproduction, plants can give rise to new plants without their seeds, whereas in sexual reproduction, new plants are obtained from seeds. Coming to asexual reproduction. In asexual reproduction, new plants are obtained without the production of seeds. Vegetative propagation. तो asexual reproduction में first type है vegetative propagation. So it is a type of asexual reproduction in which new plants are produced from the roots, stems, leaves and buds. That is from the vegetative parts of a plant, है ना। Vegetative parts, vegetative propagation. Propagation यानी वहां से grow होना, ठीक है, या स्प्रेड होना। तो वेजिटेटिव पार्ट से जहाँ जब रिप्रोडक्शन होता है या प्रोपोगेशन होता है उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। Now the perfect definition is reproduction through vegetative parts of a plant is known as vegetative propagation। ठीक है, बोर्ड में भी दिया गया है। Now आपको एक एक्टिविटी दी गई है, दो एक्टिविटीज है 12.1 एंड 12.2। ओके, now we can also grow ginger, like they have shown how to grow tomato, sorry not tomato, it is cutting of a rose, ठीक है, how to grow rose and potato। Okay, now coming to bryophyllum. Bryophyllum or sprout leaf plant has buds in the margins of leaves. It is a leaf of this plant which falls on a moist soil. Each bud can give rise to a new plant। ठीक है, तो अभी क्या होता है, ऐसे लीव्स होते हैं, लीव्स के एंड में ना उसके बर्ड्स होते हैं। ब्रायोफाइलम का जो प्लांट रहता है उसके लीव्स में छोटे 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 बर्ड्स होते हैं ऑन द बॉर्डर साइड। तो जब ये लीफ नीचे गिरता है वो सारे बर्ड्स जो हैं सीड जैसे काम करने लगते हैं, मतलब उन सारे बर्ड से ही एक नया प्लांट उग जाता है ब्रायोफाइलम का। ओके, ना पोटैटो के बारे में अगर हम बात करें तो पोटैटो के ऊपर में ना छोटे छोटे स्कार्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आईज। दीज स्कार्स आर कॉल्ड आईज ऑफ द पोटैटो। कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पार्ट्स ईच विद एन आई। ठीक है, अगर हम एक एक आई लेंगे, समझो मैंने ये एक आई काट लिया पोटैटो का और उसको मैंने सॉइल में प्लांट कर दिया और थोड़ा वाटर दे दिया रेगुलरली,
ठीक है, तो क्या होगा, उससे नया पोटैटो का प्लांट उग जाएगा। सिमिलरली हम लोग क्या ग्रो कर सकते हैं, जिंजर ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि अदरक, अदरक ग्रो कर सकते हैं, या फिर हल्दी भी ग्रो कर सकते हैं। अभी हमारे घर पे जो हल्दी का पाउडर मिलता है वो एक्चुअल हल्दी नहीं होती, मतलब एक हल्दी का भी अलग टाइप ऑफ प्लांट होता है, उसको पेस्ट बना के, पाउडर बना के हम घर में यूज करते हैं, ठीक है। सो हल्दी ऑल्सो हैज इट्स प्लांट। नाउ roots of some plants can also give rise to new plants. Sweet potato and dahlia are examples. dahlia and sweet potato, ठीक है। सो हमने अभी तीन टाइप का देखा, एक तो फ्रॉम द स्टेम, है ना, पोटैटो इज अ स्टेम, फर्स्ट वाला, इट इज ग्रोन फ्रॉम आइस। स्टेम वाला एग्जाम्पल क्या है, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक। सेकेंड है लीफ, लीफ में हमने देखा ब्रायोफाइलम, उसमें क्या होते हैं, बर्ड्स इन द मार्जिन्स ऑफ लीव्स। थर्ड हमने देखा रूट्स, और उसका एग्जांपल्स है स्वीट पोटैटो एंड डाहलिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वीट पोटैटो इज अ रूट while our normal potato is a stem. Now, plants such as cacti produce new plants when their parts get detached from the main plant body. Each detached part can grow into a new plant. ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा स्टेम काट के वापस उसको ही ग्रो करने लगोगे सॉइल में, तो उस स्टेम से भी एक नया प्लांट जन्म लेगा। Now this is the leaf of a bryophyllum with buds in the margins, as you can see. These are the new plants. Plants produced by vegetative propagation take less time to grow and bear flowers and fruits earlier than that of the normal plants. Normal plants मतलब ऐसे plants जो seed से grow होते हैं. The new plants are exact copies of the parent plant as they are produced from a single parent. Later in the chapter, we will learn that plants produced by sexual reproduction have characteristics of both parents. Plants produce seeds as a result of sexual reproduction. Coming to budding, ये भी एक टाइप का asexual reproduction है, which is seen in microorganisms. ठीक है, you have already learnt about the tiny organisms, है ना, हमने yeast के बारे में देखा है ना, और हमने देखा है अमीबा के बारे में, राइट, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में अमीबा के बारे में देखा, एंड यीस्ट के बारे में भी देखा है हमने, इट इज अ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच डज नॉट कंटेन एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम वाले सिस्टम के चैप्टर में देखा है हमने यीस्ट के बारे में भी, ठीक है। नाउ लेट अस सी हाउ दीज स्मॉल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो ये एक एक्टिविटी से आपको दिखाया गया है। टेक अ पीस ऑफ यीस्ट, cake or yeast powder from bakery or chemist shop. Take a pinch of yeast and place it in a container with some water. Add a spoonful of sugar and shake to dissolve it. Sugar क्यों ऐड किया, क्योंकि yeast को ग्रो होने के लिए एनर्जी चाहिए, है ना, वो एनर्जी उसको शुगर से मिलेगी, नॉर्मल पानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि पानी में बहुत कम अमाउंट ऑफ मिनरल्स रहते हैं, और डिस्टिल्ड वाटर में तो बहुत ज़्यादा ही कम रहते हैं, है ना। डिस्टिल्ड आपको मालूम है, डिस्टिल्ड वाटर में इट्स अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, है ना। नाउ कि उसमें शुगर क्यों लाएंगे, क्योंकि वो उस यीस्ट को न्यूट्रिएंट्स देगा। ओके, नाउ एंड शेक इट टू डिसॉल्व इट, कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ अ रूम। आफ्टर एन आवर पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड on a glass slide and observe under a microscope. What do you observe? You may see the formation of new yeast cells. So this is the reproduction in yeast by budding. आप देख सकते हैं ये है yeast cell। अब यीस्ट सेल में छोटा सा एक बड डेवलप हो रहा है, ये बड क्या हो रहा है, धीरे धीरे सेपरेट हो रहा है, ये न्यू बड जो है उससे और एक नया बड बन रहा है, ठीक है, ऐसे चेन्स बन रहे हैं, वो चेन्स क्या हो जाएंगे, फिर सेपरेट हो जाएंगे from the parent cell. The small bulb-like projections coming out from the yeast cell are called buds. The bud gradually grows and gets detached from the parent cell and forms a new yeast cell. The new yeast cell grows, matures and produces more yeast cells, है ना, तो ऐसे साइकिल चलता रहता है। Sometimes another bud arises from the bud, forming a chain of buds. If this process continues, a large number of yeast cells are produced in a short time. मतलब पहले से एक छोटा बड है, उसमें ही उस छोटे बड से ही और एक बड आ रहा है, फिर और एक बड, एक चेन ऑफ बर्ड्स हो रहा है, जैसे दिखाया गया है, चेन ऑफ बर्ड्स। तो ऐसे अगर फॉर्म हो रहे हैं तो बहुत कम टाइम में बहुत सारे यीस्ट फॉर्म हो सकते हैं, yeast cells. Okay, now coming to fragmentation, you might have seen a slimy green patches in ponds. ठीक है, पॉन्ड होता है या वाटर सरफेस होते हैं, उनके ऊपर में ना पैची पैची रहता है ग्रीन कलर का,
है ना. These are algae. When water and nutrients are available, algae grows and multiply rapidly by fragmentation. An alga breaks up into two or more fragments. तो आप देख सकते हैं alga दिया हुआ है, ऊपर algae दिया हुआ है ना. तो algae मतलब बहुत सारे alga. Alga is singular, algae is plural. ठीक है. So these fragments or pieces grow into new individual. ये है एक alga है, ये break down हो जाता है, टूट जाता है. तो इस टूटने से बनते हैं दो नए alga. ठीक है, ये एक alga, ये एक alga. ये alga जब टूट जाएगा और दो नए alga बनेंगे, तो अपने पास बहुत सारे एल्गी हो जाएंगे फिर. ठीक है. we'll have a lots of algae in the water source. This process continues and they cover a large area in short period of time. Now coming to spore formation. In chapter 1 we have learned that fungi on a bread piece grow from spores. है ना, हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स में कि फंगाई जो है वो स्पोर्स में ग्रो होते हैं. मतलब जहाँ पे उनको मॉइस्चर मिलता है और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वैसी जगहों पर ग्रो होते हैं. नाउ ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मेश ऑन द ब्रेड. ठीक है. ब्रेड पे क्या होता है, कॉटन लाइक एकदम स्टिकी स्टिकी मेश सब्सटेंस हो जाता है. व्हेन स्पोर्स आर रिलीज दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर, है ना. एज दे आर वेरी लाइट एंड दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. बहुत लाइट होते हैं इसलिए डैंडेलियन देखा होगा आपने. डैंडेलियन के जो छोटे छोटे पेटल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा लाइट होती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं. और उन पेटल्स में ही एक्चुअली सीड्स रहते हैं डैंडेलियंस के, और वो सीड्स जहाँ कौन से एरिया में जाके गिरेंगे वहां पर एक नया डैंडेलियन का फ्लावर उग जाएगा. ओके. नाउ स्पोर्स आर asexual reproductive bodies. Each spore is covered by a hard protective coat to withstand unfavorable condition. अभी each spore जो है यहाँ पर देख सकते हो आप, तो each spore जो है अपने ऊपर एक कवरिंग लेके घूमता है. क्यों? क्योंकि कवरिंग के अंदर वो सीड प्रेजेंट होता है ना. वो सीड इतना सेंसिटिव होता है कि वो हार्श वेदर कंडीशन या अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस को नहीं झेल सकता, जैसे कि हाई टेम्परेचर या लो ह्यूमिडिटी, है ना. तो इसलिए उस सेल को बहुत लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करने के लिए एक वॉल लाइक प्रोटेक्टिव कोट फॉर्म हो जाता है. ठीक है. और जब फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं, जैसे कि बराबर मॉइस्चर मिल जाता है और न्यूट्रिएंट्स मिल जाती है, तभी ये स्पोर जो है वो वॉल टूट जाता है और द स्पोर जर्मिनेट्स and develops into a new individual. Plants such as moss and ferns also reproduce by the means of spore formation. Now coming to sexual reproduction. We have learned earlier the structure of a flower. है ना, last year हमने पढ़ा था flower का structure. You know that the flowers are reproductive parts of a plant. Stamen are the male reproductive part and pistil is the female reproductive part. है ना. फ्लावर में मेन दो पार्ट होते हैं, स्टेमन और पिस्टिल. ठीक है. स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. पिस्टिल है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. एक और एक्टिविटी दी गई है, टेक अ मस्टर्ड और चाइना रोज और पेटूनिया फ्लावर एंड सेपरेट इट फ्रॉम इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. स्टडी द वेरियस पार्ट्स ऑफ स्टेमन एंड पिस्टिल. तो आप मस्टर्ड, चाइना रोज, पेटूनिया ये सब मिल सकता है, बट द इजीएस्ट वन इज हिबिस्कस. यू नो हिबिस्कस फ्लावर जो है आप उसको भी बीच से काट के स्टडी कर सकते हैं. Now, flowers which contain either only pistil or only stamen are called unisexual flowers. मतलब ऐसे flowers जिनमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, नहीं तो सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ऐसे फ्लावर्स को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं. मतलब सिर्फ एक या तो मेल या तो फीमेल, सिर्फ एक जेंडर वाले फ्लावर्स को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. Flowers which contain both stamen and pistil are called bisexual flowers. ऐसे flowers जिसमें दोनों होते हैं फीमेल as well as male reproductive parts, उन flowers को हम कहते हैं bisexual flowers. Corn, papaya and cucumber produce unisexual flowers, whereas mustard, rose and petunia have bisexual flowers. Both male and female unisexual flowers may be present in the same plant or in different plants. अभी unisexual flowers जो होती हैं उनमें क्या होता है कि एक फ्लावर में होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दूसरे फ्लावर में होते हैं
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये दोनों फ्लावर्स जो है या तो सेम प्लांट में हो सकती है या डिफरेंट प्लांट्स में भी हो सकते हैं। नाउ could you identify the anther and the filament of a stamen? Another contain an anther जो है, anther में क्या होता है, मेल गैमीट्स होती है, ठीक है, मेल सेल्स होती है। anther contains pollen grains which produce male gametes। pollen grains, अभी हमने हिबिस्कस फ्लावर लिया है, उसके ऊपर जो येलो येलो स्टिकी स्टिकी होती है ना, वो एंथर के ऊपर येलो येलो स्टिकी स्टिकी, ठीक है, वो क्या होता है, थोड़ा बहुत स्टिकी होता है, तो उसे हम कहते हैं एंथर, ठीक है। उसमें हम उसे हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स के अंदर होता है मेल गैमीट, ठीक है। सो यू कैन सी दिस इज द फिलामेंट, दिस इज द एंथर, और होता है वहां पे पोलन ग्रेन्स। अ पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल। The female gametes or the egg is formed in an ovule here, ठीक है, मैं लेजर ले लेती हूँ, या ओवर हियर, ठीक है। Egg is formed in ovule. In sexual reproduction, a male and a female gamete fuse to form a zygote. Now coming to pollination, ठीक है। अभी पॉलिनेशन हमें ये रिलेट होता है कि ये पोलन ग्रेन से रिलेटेड है, राइट। सो जनरली पोलन ग्रेन्स जो है उनके ऊपर भी एक टफ प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो उन्हें ड्राई अप होने से प्रोटेक्ट करता है ना। सिंस पोलन ग्रेन्स आर लाइट, दे कैन बी कैरीड अवे बाय विंड, वाटर, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन बोलते हैं, या पॉलिनेटिंग एजेंट्स बोलते हैं, किन्हें, विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, इन सबको, ठीक है। So insects visit the flower and carry away the pollen grains on their bodies. Some of the pollens land on the stigma of a flower of the same kind. The transfer of pollen from the anther to the stigma of a flower is called pollination. अभी pollination में भी दो टाइप है ना, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। इन दो टाइप का मतलब क्या है, if the pollen lands on the stigma of the same flower or another flower of a plant, it is called self pollination। मतलब ऐसा पहले क्या हुआ कि एंथर से पोलन ग्रेन लिया, अगर वो उसी फ्लावर में, इफ द फ्लावर इज बायसेक्सुअल, उसी फ्लावर में जाके स्टिग्मा पे लैंड होता है, देन इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। अगर ये दोनों प्लांट्स जो है वो यूनिसेक्सुअल भी हैं, पर फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल है पर एक ही प्लांट के अंदर है, ठीक है, एक ही प्लांट है, उसके अंदर दो फ्लावर्स है, तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में गया इन द सेम प्लांट, ठीक है, इन द सेम प्लांट, देन ऑल्सो इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। व्हेन द पोलन of a flower lands on the stigma of a flower of different plant, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे लैंड करता है, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे, then it is called cross pollination। okay, now coming to fertilization, the cell which results after the fusion of the gametes is called a zygote। ठीक है, तो जो जो भी बोल्ड में है वो आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करना है। The process of fusion of a male and female gamete to form a zygote is called fertilization। The zygote develops into an embryo। So here you can see zygote formation। ओके यहाँ पे जो है पोलन ग्रेन वो पोलन ट्यूब फॉर्म करके नीचे जा रहा है टू द ओवरी, ठीक है, ओवरी के अंदर मिलेगा उसका ओव्यूल, देन ऑकर्स फर्टिलाइजेशन, है ना। ओव्यूल एग, एग के साथ होता है फर्टिलाइजेशन, फिर फॉर्म होता है जाइगोट। जाइगोट जब थोड़ा ग्रो होने लगता है उसको बोलते हैं एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो से सीड फॉर्म होता है, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। द फ्रूट इज राइपन्ड ओवरी, फ्रूट जो होता है वो होता है पका हुआ ओवरी, ठीक है, राइपन्ड ओवरी। द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स, सीड्स जो है वो ओव्यूल से डेवलप होती हैं। द सीड्स कंटेन एन एम्ब्रियो एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। तो हमने जब सीड का स्ट्रक्चर पढ़ा था बचपन में, कॉटिलिडन्स होते हैं, उसके अंदर छोटा सा बेबी प्लांट होता है, उस बेबी प्लांट को एम्ब्रियो बोला जाता है, राइट। और जो सीड के जो आजू बाजू दो साइड्स होते हैं उनको कॉटिलिडन्स बोला जाता है, राइट। द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट, सीड का कोट भी होता है, राइट, सीड कोट। सम फ्रूट्स आर फ्लेशी एंड जूसी,
such as mango and orange, while some fruits are hard, like almonds and walnuts. Okay, now coming to seed dispersal. In nature, same kinds of plants grow at different places. This happens because seeds are dispersed to different places. Sometimes, after a walk through a forest or a field or a park, you may have found seeds or fruits sticking to your clothes. Did you try observing how these seeds were clinging to your clothes? कैसे चिपके थे? कभी आपने observe किया है? Now, what do you think will happen if the seeds of a plant were to fall in the same place and grow there? अगर एक ही जगह पे सारे रोज, अगर मैंने रोज प्लांट किया है, रोज के सीड्स सिर्फ उसी जगह में ग्रो करेंगे, तो डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी, राइट? अब ये रोज कहाँ कहाँ मिलता है? अपने इंडिया में बहुत जगह मिलते हैं रोज, है ना? अपने इंडिया की बात करें तो वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। एनी स्मॉल एरिया की भी बात करें, अपने गार्डन की भी बात करें, तो एक एंड में मिलेंगे, फिर दूसरे एंड में भी रोज मिलेंगे आपको, है ना? और हमेशा ऐसा नहीं होता कि किसी ने प्लांट किया होता है। समटाइम्स दे ग्रो ऑन देयर ओन। कैसे? सीड डिस्पर्सल से। वो सीड जो है विंड के साथ फ्लो होके उस जगह पे गिर गए होते हैं और वहां से वो ग्रो होते हैं। ठीक है? देयर वुड बी सीवियर कंपटीशन फॉर सनलाइट। अगर एक ही जगह पे सारे रोज के प्लांट ग्रो हो गए, तो वहां पे सनलाइट, वाटर, मिनरल्स और जगह के लिए सीवियर कंपटीशन होने लगेगा। As a result, the seeds would not grow into healthy plants. Plants benefit by seed dispersal. Seed dispersal से benefit होता है, it prevents competition between the plant and its own seedlings for sunlight, water and minerals. It also enables the plant to invade new habitats for wider distribution, है ना? और जगह और diversity grow करने में भी help होता है. Seeds and fruits of plants are carried away by wind, water and animals. Winged seeds such as those of drumstick and maple, ठीक है, आप देख सकते हैं ड्रमस्टिक एंड मैपल, दीज आर विंग्ड सीड्स, मतलब ऐसे विंग टाइप स्ट्रक्चर है उनमें, दीज आर द सीड्स जो अंदर है और ऊपर है, दीज आर द विंग्स एंड दीज आर द सीड्स। ठीक है? और लाइट सीड्स ऑफ ग्रासेस और हेरी सीड्स ऑफ आक और मदार एंड हेरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर, सो यू कैन सी दीज आर हेरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर, देख सकते हो आप, एंड द हेरी सीड ऑफ मदार और एक। ठीक है? Get blown off with the wind to faraway places. Some seeds are dispersed by water. These fruits or seeds usually develop floating ability in the form of spongy or fibrous outer covering, as in coconut. कोकोनट में क्या होता है? सीड्स जो है पानी से ट्रांसपोर्ट होती है, इसलिए कोकोनट का आउटर लेयर बहुत स्ट्रांग होता है टू विथस्टैंड वाटर। ठीक है? वाटर में फ्लोट करने के लिए। Some seeds are dispersed by animals, especially spiny seeds with hooks which get attached to the bodies of animals are carried to distant places. Examples are xanthium, आपको दिया हुआ है xanthium का picture, xanthium and urena. Some seeds are dispersed when the fruits burst with sudden jerks. The seeds are scattered far from the parent plant and this causes seed dispersal. This happens in the case of castor and balsam. So you need to remember all types of asexual reproduction with their examples. Okay? And also go through the keywords. Keywords क्यों दिए गए होते हैं? To write down their definitions. These are important words from the chapter. Okay? Thank you.